So hi everyone, a very good morning to all of you and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to talk about another very important scheme of the Ministry of Finance, that is the gold monetization scheme. And trust me guys, I am just overwhelmed with the responses that you guys gave in my first government scheme class. So अगर आप में से किसी ने वो पहली government scheme की class नहीं देखी है तो please जाइए और देखिए. So these government scheme sessions are helpful for all the government examination. मैं इसमें up to the required depth सारी government schemes cover करूंगा जो कि exam point of view से important है. So right now we are covering the schemes from the Ministry of Finance. Stand Up India we have already covered. Today it's the time to cover the gold monetization scheme. It's a very important scheme. A lot of time, a lot of questions have been asked in multiple examination from this particular scheme. तो चलिए start करते हैं with the discussion of this particular scheme. So as the name says, my dear friends, gold monetization. What is the name of the scheme? Gold monetization. मैंने हमेशा बताया है that for objective you need not worry, you can easily identify the objective from the name of the scheme itself. Gold monetization, which means we are monetizing the gold, right? And that is the objective of this particular scheme, to mobilize gold held by households and institutions in India, put it to productive use and reduce reliance on gold imports. That is the whole objective. अब आपके घरों में, हमारे देश में क्या है कि घरों में सोना जमा करने की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है. तो सरकार ने बोला कि आप अपने घर में सोना मत रखिए या अपने बैंक के लॉकर में सोना मत रखिए, उसको मोनेटाइज करिए, उससे पैसा कमाइए, राइट? तो कैसे इसके अंदर रिटर्न्स मिलते हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, ऑल ऑफ दीज विल बी डिस्कस्ड. और सरकार इस सोने का क्या करती है और मेच्योरिटी पे आपको सोना किस फॉर्म में वापस मिलता है, एवरीथिंग शैल बी डिस्कस्ड, right? So the basic objective is to mobilize gold which is idle with the households and the institutions in India. And जब हम बैंक लॉकर में अपना जाके सोना रखते हैं तो बैंक लॉकर के चार्जेस भी देने पड़ते हैं. तो आपको उन चार्जेस से बचाने के लिए, या फिर आपको जब घर में सोना पड़ा होता है तो आपको एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं भाई चोरी वगैरह ना हो जाए. सो उस थ्रेट से बचाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद दिस स्कीम in the year 2015 and it is being implemented by the Reserve Bank of India, right? Now let's talk about some important provision of this particular scheme. First of all, which are the target groups? So the target groups are first of all the household जिनके घर में सोना ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ रही है बट उस पे और ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो उसको और रिटर्न देने, उससे और रिटर्न लेने के लिए और उसको मोबिलाइज करने के लिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम. इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट, बहुत सारे मंदिरों में आपने सुना होगा बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, तो सोना तो आइडल पड़ा है, उसका कोई काम नहीं है और सरकार के ऊपर गोल्ड को इंपोर्ट करने का प्रेशर बढ़ रहा है. तो सरकार ने इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट को बोला कि आइए और इस सोने को मोबिलाइज करिए. And of course the jewelers to facilitate access to gold loans under the scheme. So these are the target groups of gold monetization scheme, right? Now, what is the minimum deposit that one can do under this particular scheme? So minimum deposit is 10 grams and there is no maximum limit. कोई भी maximum limit नहीं है. Minimum deposit however is 10 grams and the deposits can be done in the form of bars, in the form of coins and in the form of jewelry as well. चाहे आपके पास सोना बार की फॉर्म में पड़ा है, राइट, सोने के बिस्किट पड़े हैं आपके घर में, सोने के सिक्के पड़े हैं या फिर ज्वेलरी पड़ी है, किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है. नाउ द डिपॉजिट, माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, कैन बी डन फॉर 3 different terms. Number 1 is short term deposit, number 2 medium term and number 3 long term. The short term deposits are done for a period of 1 to 3 years. Medium term deposits are done for the period of 5 to 7 years and long term deposits are done for the period of 12 to 15 years. And remember, the deposits are allowed in the broken periods as well. Now what does it mean by broken period? Broken period का मतलब है, जैसे for example medium term deposit में 5 to 7 years है. So it is not compulsory that you deposit for 5 years or 6 years or 7 years. You can also deposit for 5 years, let's say 6 months. You can also deposit for 6 years, 3 months. You can also deposit for let's say 6 years, 7 months. So basically broken periods में भी deposit किया जा सकता है, ठीक है. There is a lock-in period. In short-term deposit, there is no lock-in period. Do remember that. In short-term deposit, there is no lock-in period. However, in medium-term and in long-term deposit, there is a lock-in period of 3 years and in long-term it is 5 years. यानी कि medium-term में 3 साल के बाद ही आप redeem कर सकते हैं
इन लॉन्ग टर्म में 5 years के बाद ही आप रिडीम कर सकते हैं. रिडम्पशन इज अलाउड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years. In case of medium term deposit, in case of long term, the redemption is allowed only after the 5 years of deposit. ठीक है. अच्छा जी, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैंने आपको बताया था, सरकार ने बोला कि आप अपने सोने को ऐसे मत रखिए, आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो कितना मिलेगा भाई? कुछ तो मिलेगा. तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर हम करते हैं, इफ एनी बेनिफिशियरी डज द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, then in that case the interest rates are decided by the banks, right? And that is payable in the terms of grams of gold. ये भी समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए. मीडियम टर्म डिपॉजिट में 2.25% per annum and long term deposit में 2.50% per annum, right? Do remember the interest rates. In medium term 2.25, in long term 2.5, and in short term the banks are free to decide the interest rate as per the prevailing rate of interest as per the prevailing market rates. ठीक है. चलिए, अब जो गोल्ड है वो डिपॉजिट कहाँ पे होगा? तो there are over 330 collection and purity testing centers which are licensed to test and certify the gold purity, and the deposits are converted into equivalent bars or coins. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड की चेन दी, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा है? गोल्ड की चेन दी, राइट? गोल्ड की चेन डिपॉजिट कराई. नाउ दिस गोल्ड चेन शैल बी मेल्टेड, it will be melted and it will be converted into equivalent bars और कॉइन्स. इनको बार्स और कॉइन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके सरकार अपने पास डिपॉजिट कर लेती है. ठीक है. यानी कि जब आप अपना सोना डिपॉजिट करते हैं तो आपको सेम फॉर्म में नहीं मिलता है, आपको बार्स या कॉइन्स की फॉर्म में वापस मिलता है. वापस मिलने के समय क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उसकी भी बात करेंगे, राइट? नाउ रिडेम्पशन की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म डिपॉजिटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो दे कैन रिडीम इन गोल्ड और कैश एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, व्हाइल इन केस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स द redemption can only be done in the terms of cash only. शॉर्ट टर्म में अगर आपको मेच्योरिटी से पहले रिडीम करना है तो आप चाहो तो अपना गोल्ड वापस ले सकते हो या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश. लेकिन अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है तो आपको जो रिडम्पशन अमाउंट होगी वो सिर्फ कैश के फॉर्म में मिलेगी, गोल्ड के फॉर्म में नहीं मिलेगी. मान लेते हैं कि आपने 3 लाख का गोल्ड डिपॉजिट करा था शॉर्ट टर्म में, ठीक है? तो अब आपको या तो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ कोर्स एंड द प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ गोल्ड. मान लेते हैं कि आपने 3 लाख रुपए डिपॉजिट करे और अब आप रिडीम कर रहे हैं और रिडीम करते वक्त गोल्ड का रेट कितना है? 4 लाख रुपए. तो एक तो 4 लाख मिलेंगे प्लस जो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट अर्न हुआ होगा वो मिलेंगे. ठीक है. वाइल अब ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, या तो गोल्ड की फॉर्म में ले लो, 4 लाख का सोना ले लो प्लस इंटरेस्ट रेट ले लो. लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म होगा तो सिर्फ ये कैश की फॉर्म में ही मिलेगा, यानी कि 4 लाख प्लस इंटरेस्ट. ऑलराइट. चलिए, टैक्स बेनिफिट क्या है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इंटरेस्ट आ रहा है या जो भी गोल्ड की वैल्यू में जो गेन आ रहा है उसमें कोई भी ना तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ना ही वेल्थ टैक्स लगता है और ना ही इनकम टैक्स लगता है इंटरेस्ट के ऊपर. इंटरेस्ट जो हम अर्न करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बेसिक एफडीज पे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है. बट यहाँ पे सरकार ने बोला दैट ओके, यू आर प्रोवाइडिंग अस द गोल्ड, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू द टैक्स बेनिफिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ सरकार उस गोल्ड का क्या करती है? सरकार उस गोल्ड का क्या करती है? तो सबसे पहले तो गोल्ड जो है या तो ऑक्शन पे चला जाता है, ठीक है, या फिर सरकार सीधा उसको मेल्ट करके आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में डाल देती है ताकि गोल्ड के इंपोर्ट से बचा जा सके, और या फिर इशू कर देती है कॉइन्स या फिर ज्वेलर्स को लेंड कर देती है. ठीक है. तो अब इसमें सरकार का क्या फायदा होता है? सरकार का फायदा सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं क्या है. एक तो यह है कि वो इंपोर्ट से बचेंगे गोल्ड के. ठीक है. दूसरा, अब जब इंपोर्ट से बचेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस होगा. तीसरा, जो गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो गोल्ड रिजर्व जो है वो रिप्लेनिश होगा. ठीक है. ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं सरकार के आपको इंटरेस्ट देने के, राइट? ना अब आते हैं मेच्योरिटी. अब मान लेते हैं कि मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अपना मान लेते हैं 100 ग्राम गोल्ड, लेट्स से 100 ग्राम गोल्ड मैंने आज डिपॉजिट कराया, और मान लेते हैं आज जो रेट है वो चल रहा है 3000 पर ग्राम. ठीक है. मान लेते हैं 3000 पर ग्राम तो बहुत कम हो गया भाई, चलो मान लो 5000 पर ग्राम मान लेते हैं. ठीक है. मैंने 100 ग्राम गोल्ड 5000 पर ग्राम के हिसाब से, यानी 5 लाख रुपए का गोल्ड मैंने आज जमा कराया. ठीक है. मान लेते हैं मैंने मीडियम टर्म में जमा करा दिया. ठीक है. अब मैच्योरिटी पे क्या होगा वो देखते हैं. तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट करता हूं, सो इन दैट केस I will get the principal repayment in the form of gold or INR equivalent of the value of deposited gold at the time of redemption. अब मान लेते हैं कि at the time of maturity ये 5 लाख जो है वो बन के हो गए 6 लाख रुपए.
तो मुझे कितना मिलेगा भाई, या तो 6 लाख का सोना मिलेगा या 6 लाख रुपए अमाउंट में मिलेगा। ठीक है जी, 6 लाख रुपए मिलेगा या 6 लाख रुपए का सोना मिलेगा। ठीक है, ये कब है, मेच्योरिटी पे है। ठीक है, लेकिन अगर पहले करेंगे तो हमने अभी पढ़ा था शॉर्ट टर्म में गोल्ड या कैश दोनों, मीडियम टर्म में सिर्फ कैश। ठीक है और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट जो है वो INR के फॉर्म में ही मिलता है, रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। अब 5 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए जो डिपॉजिट अमाउंट था, राइट, इस 5 लाख रुपए पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा अगले जितने भी सालों के लिए डिपॉजिट किया है वो मेरे को मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ INR, कैश में मिल जाएगा। ठीक है, if I have deposited in the medium term deposit, then I will get the redemption value in terms of gold or INR equivalent of the value of deposited gold at the time of redemption। ठीक है, जो डिपॉजिटेड गोल्ड था, अब मान लेते हैं रिडम्पशन वैल्यू मीडियम टर्म में रिडम्पशन के टाइम कितनी है, 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का या तो गोल्ड मिल जाएगा या INR मिल जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट वही है, INR के फॉर्म में मिलेगा ऑन द वैल्यू जो कि डिपॉजिटेड टाइम पे जो भी वैल्यू थी, दैट इज 5 लाख रुपीस। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं सेम है, इन गोल्ड और INR इक्विवेलेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिटेड गोल्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अब मान लेते हैं लॉन्ग टर्म में किया है तो वैल्यू हो गई इसकी बढ़ के कितनी, 10 लाख रुपए, तो या तो मेरे को 10 लाख का, सो आइदर आई विल गेट 10 लाख रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड और 10 लाख रुपीज इन कैश, एंड इंटरेस्ट आई विल गेट इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, एंड दैट कैश will be the interest that has been accrued on this amount, which amount, the amount at the time of deposit के टाइम पे जो भी अमाउंट था। ठीक है, आई होप गाइज देयर आर नो कंफ्यूजन्स। नाउ मैंने आपको बताया था that I will be talking about the impacts and outcomes always। so impacts की अगर मैं बात करूं, so it will reduce the import dependency, I already told you। The economic benefits, like it will lower down the current account deficit, it will balance out the balance of payment, and it will also provide the support to the gems and jewelry sector by ensuring the availability of gold for jewelers, boosting exports and domestic trade। अब मान लो कि ये तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि सारा सोना जो है वो घर वालों ने, हाउस होल्ड्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, ट्रस्ट ने खरीद के अपने घरों में और लॉकर्स में बंद कर लिया। अब क्या होगा, अब ज्वेलर्स को तो आगे और बेचना है, राइट, मार्केट में डिमांड तो भी है, उसके लिए क्या होगा, फिर ज्वेलर जो है वो इंपोर्ट कराएगा गोल्ड, और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आएगा, हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आएगा, राइट। सो इसीलिए ताकि मार्केट के डिमांड को फुलफिल किया जा सके, so the government through the gold monetization scheme provides support to the gems and jewelry sector as well। ठीक है, चैलेंजेस क्या है भाई इसके अंदर, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला तो यह है लो पार्टिसिपेशन। पहले 4 साल में, जब स्कीम के पहले 4 साल थे, केवल 16 टन जो सोना था वो मोबिलाइज हो पाया, और 16 टन एक्चुअली बहुत कम वैल्यू है in terms of gold which is deposited, which is lying idle in the households and the charitable institutions and trust, right। there is a sentimental attachment in the households। अब आपको पता है कि स्त्री धन, जिसको हम बोलते हैं, स्त्री धन के नाम पे हमारे घरों में सोना एकदम भरा पड़ा है। ठीक है, कि भाई हमारी बहू को मिला था, हमारे बेटे को मिला था, हमारी बेटी को मिला था, हमारे दादाजी ने जाते वक्त हमारे लिए छोड़ा था। तो ये जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इंडिया में गोल्ड को लेके, उसकी वजह से भी ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, राइट। एंड ऑफ कोर्स द इनएडिक्वेट नॉलेज। अब मेरी मदर की अगर मैं बात करूं या मेरे किसी रिश्तेदार की बात करूं, चलो मेरे को तो नॉलेज है गोल्ड मोनेटाइजेशन की, ठीक है, तो मैं अपने घर में पड़े हुए जो भी गोल्ड होगा उसको मोनेटाइज करा लूंगा, या आपको भी आज से नॉलेज हो गई। लेकिन आप अपनी मदर से जाके पूछना क्या उनको पता है इसके बारे में, ऑफ कोर्स नहीं पता है। अपने फादर से पूछना क्या उनको पता है, अपने दादा से पूछना क्या उनको पता है, नहीं पता है। तो inadequate knowledge is also one of the major challenge of this particular scheme। ठीक है जी, I hope guys the gold monetization scheme is clear। That's all about this scheme। So basically मैं आपको summarize कर देता हूँ। gold monetization scheme को launch किया था सरकार ने 2015 में, ताकि वो आइडल पड़े हुए गोल्ड को मोबिलाइज कर सके। सरकार क्या करती है, लोगों से सोना लेती है, उसको मेल्ट करके कॉइन्स या बार्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, फिर उसको ऑक्शन पे भेजा जाता है, जिससे कि सरकार का इंपोर्ट बिल कम होता है, सरकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है, सरकार के करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होते हैं। ठीक है, और जो बेनिफिशियरीज हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको क्या फायदा मिलता है, दे गेट दी जब रिडेम्पशन के टाइम पे उनको जो उस टाइम पे जो वैल्यू होती है सोने की वो तो मिलती ही है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। डिपॉजिट 3 तरीके से किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 to 3 years, medium term 5 to 7 years, long term 12 to 15 years। short term में the banks are free to decide the interest rate based on the prevailing market rates। in the medium term it is 2.25%, in long term it is
2.50%. ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर एंड let's solve this particular question based on gold monetization scheme. I hope guys the scheme is clear. Now question पढ़ते हैं. Mukul belongs to a wealthy family and possesses various gold coins. मुकुल जो है एक wealthy family से, उसके बाद बहुत सारे सोने के सिक्के हैं. His forefathers were of the view that these gold coins are a part of their heritage and hence the coins need to be preserved. Again, the sentiment that is attached to the gold. But Mukul is of a different view. He wants to mobilize this large amount of gold and earn some interest by investing gold under a Government of India scheme launched in 2015. Under the scheme, the deposits of gold can be done for short term, medium term, and long term. There is a minimum limit of gold which can be invested under the scheme. Right now, जब भी gold basis scheme पे question आता है ना, तो confusion होती है between gold monetization and sovereign gold bond scheme. So gold monetization और sovereign gold bond scheme में क्या difference है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे sovereign gold bond. ठीक है. Mukul wants to invest 10 kg gold in the scheme. Can he invest this much amount of gold? If yes, how much interest per annum will he get if he invest for long term period? ठीक है, तो आई होप स्कीम तो समझ में आई गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंट है. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. 2015 में लॉन्च हुई एंड देयर इज अ मिनिमम लिमिट. ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ हिंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट द स्कीम इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं. क्वेश्चन दो थे, क्या वो इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड इन्वेस्ट कर सकता है, पहला, और दूसरा कि उसको कितना इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा. ठीक है, चलिए. सो ही कैन नॉट इन्वेस्ट 10 kg गोल्ड बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट इज 4 kg. नो, दैट इज नॉट द केस. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. He can invest because there is no maximum limit and he will get 2.5% return on his investment. That is absolutely correct and that will be the correct answer. But let's read out the other options. He cannot invest 10 kg gold because the maximum limit is 2 kg. ऐसा बिल्कुल नहीं है. There is no maximum limit again. He can invest because the maximum limit is 20 kg. No maximum limit. And he can invest because there is no maximum limit and he will get 2% return on his investment. The rate of interest that he will be getting is 2.5. ठीक है. So option B is the right answer, my dear friends, where Mukul can invest because there is no maximum limit and Mukul will get 2.5% return on his investment. ठीक है. That's all for the gold monetization scheme, my dear friends. I hope the scheme is clear. If you want to have the PDF of this class, you can join the Telegram channel. And the name of the Telegram channel is Manisha-RBI SEBI NABARD. Thank you very much. And I will see you in the next class on Monday. And there we will be doing the sovereign gold bond scheme. Thank you very much. Goodbye. Take care. And God bless.